Okay, let's begin with today's lecture. So today we are going to see the next type of problem in inverse Laplace transform. Okay, so here we'll be using properties to find the inverse Laplace transform of a given function. Now, before beginning, let us quickly recall what we had done in the previous lecture. In the previous lecture, we got introduced to inverse Laplace transform. Okay, so let us see how we got introduced to inverse Laplace transform. We saw that here we are defining inverse Laplace transform using Laplace transform. Okay, and what is that? If Laplace transform of a function f of t is equal to phi of s, then we say Laplace inverse of phi of s equal to f of t. Okay, so this is how we define inverse Laplace transform in this syllabus. So here inverse Laplace transform is defined as the inverse operation of Laplace transform. Okay. Next, we had seen one property of inverse Laplace transform, the famous property most often, property which we use more often, we'll be using it a lot, and that is the linearity property. This linearity property is used when you come across addition, subtraction, scalar multiplication, that is multiplication with a constant. Okay. So what does this property say? Let us see the general expression. This property says that Laplace inverse of some constant m into alpha of s plus n into beta of s equal to, this constant m comes out into Laplace transform of alpha of s plus this gets separated at addition, n times n comes out of the Laplace inverse. So n times Laplace inverse of beta of s. Okay. So constants come out, Laplace inverse can be separated when you have addition. The same thing can be done for subtraction as well. Okay. Next we saw the list of standard formulas. This list of standard formulas we got from the list of standard formulas of Laplace transform. So we are just looking at it in the other way. Okay, so let's quickly state this. We have seen Laplace inverse of 1 by s is 1. Laplace inverse of 1 upon s minus a is e raised to at. Laplace inverse of 1 upon s plus a is e raised to minus at. Laplace inverse of a upon s square plus a square is sine at. Laplace inverse of s upon s square plus a square is cos at. Laplace inverse of a upon s square minus a square is sine hyperbolic at. Laplace inverse of s upon s square minus a square is equal to cos hyperbolic at. Laplace inverse of gamma of n plus 1 upon s raised to n plus 1 is t raised to n. In the previous lecture, we had kept this formula list ready for reference in front of us. Okay, in the slide I had kept it. Today I believe you all have this with you for reference. Okay, so we will be using these standard formulas. Then in the previous lecture we have seen one type of problem, that is problem type 1, which involved standard formulas along with linearity property. So what did we see here? We saw that in these standard formulas, whenever we are seeing a problem of finding Laplace inverse, the first thing we will see is the denominator. Okay, so we look at the denominator and then we will decide how to solve the problem. So from the list of standard formulas, we have seen that there could be three types of denominators for which we can use the standard formulas. What are those? The first one is where you have the power of s as 1. So that is s plus a or s minus a. The second type is where we have the power of s as 2. So that is s square plus a square, or it could be s square minus a square. And the third type is where the power of s is anything other than 1 or 2. Okay, for when the power is 1, it is the first type. The power is 2, the second standard denominator. Anything other than 1 or 2, then we put it in this category s raised to n. Okay, so we have these formulas. So when we have these, we have these standard denominators. When we have our denominator as any one of these standard denominators, then the procedure to solve the problem is divide separately if applicable,
then use linearity property, and then use the standard formula to find the Laplace inverse. So this is the 3-step process we had followed. We divide separately, then we use linearity property, then we use the standard formula. So this is what we have seen in the previous lecture. Okay. All right. Now today, moving on to today's lecture. Now in today's lecture, we are going to see how to find Laplace inverse of a function where the denominator is quadratic. Okay, denominator is quadratic means in the denominator the power of s will be 2. Okay, so we have this problem in front of us. Laplace inverse of s plus 2 upon s square minus 4s plus 13. Now, whenever the question is finding Laplace inverse, the first thing we see is we look at the denominator. डिनोमिनेटर को देखकर क्या करेंगे, इसको अपने स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर्स के साथ कंपेयर करेंगे, वेदर द डिनोमिनेटर इज सेम एज एनी वन ऑफ द स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर. अगर ये स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर की तरह है तो हमें हमारा प्रोसीजर पता है, डिवाइड सेपरेटली, लीनियरिटी प्रॉपर्टी एंड यूज स्टैंडर्ड फॉर्मूला. करेक्ट. सो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये किसी भी स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर के साथ मैच नहीं हो रहा है. ओके, सो दैट मीन्स we have to do something and get this denominator in the standard form. In Laplace inverse always we take care of the denominator first. Numerator को बाद में देखेंगे, एक बार denominator का take care हो गया फिर numerator को देखेंगे. Okay, so we look at this denominator. अब ये quadratic denominator जब होता है, then to get this in the standard denominator there are two methods. Okay, so let us see both the methods today. Now it depends on what kind of denominator we have. Okay, so जो आज के लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम जो प्रॉब्लम्स कर रहे हैं इसमें थोड़े स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स ज्यादा है. इन द सेम प्रॉब्लम हम थोड़ा ज्यादा स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स देखेंगे. सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग. कुछ भी डिफिकल्टी है प्लीज स्टॉप मी एंड आस्क योर डाउट्स. ओके, ऑल राइट. तो जब भी हमारा जो डिनोमिनेटर है क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर है, ओके, ये डिनोमिनेटर देखो एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर है इसका रूट्स फाइंड आउट करेंगे. ओके, इसका रूट्स कैसे फाइंड आउट करना है, वी कैन यूज आवर कैलकुलेटर. अपने पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है. टेक योर कैलकुलेटर, कीप इट इन द इक्वेशन मोड. इक्वेशन मोड में जो स्क्वायर वाला फॉर्मेट है वो चूज करके आपने अगर कोएफिशिएंट्स डाला 1 माइनस 4 13 और फिर उसका रूट निकाला तो ये क्वाड्रेटिक है तो इसका 2 रूट मिलेगा आपको. ओके, ओके, परेश हैज गॉट द रूट्स 2 प्लस 3i एंड 2 माइनस 3i. वेरी गुड परेश. ओके, तो इसका हमें 2 रूट्स मिलता है. अब ये जो अगर क्वाड्रेटिक है, देखो 2 केसेस हो सकता है. केस 1 वेयर बोथ द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, जैसे कि ये केस में है. ओके, तो अगर ये दोनों रूट कॉम्प्लेक्स है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक प्रोसीजर है. वो क्या है वो इस प्रॉब्लम में देखेंगे. ओके, जो दूसरा मेथडोलॉजी है, मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर है तो 2 मेथडोलॉजी हो सकता है. एक मेथडोलॉजी है अगर डिनोमिनेटर के रूट्स कॉम्प्लेक्स है तो. दूसरा मेथडोलॉजी है अगर डिनोमिनेटर के रूट्स रियल है तो. ओके, तो ये 2 मेथडोलॉजी है. तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है तो क्या करना है, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स है, सो द मेथड वी यूज इज completing the square method. Okay, Khushi has already said that. Khushi, you have already done this topic it seems. Okay, good. तो अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स है तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करेंगे. ओके, तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का मतलब है यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है इसमें एस स्क्वायर टर्म को हम वैसा ही रखेंगे और माइनस 4s, एस स्क्वायर और माइनस 4s इन दोनों टर्म्स को लेके विल ट्राई टू कंप्लीट द स्क्वायर, ट्राई टू मेक दिस एज अ परफेक्ट स्क्वायर. उसके लिए एक लास्ट टर्म की जरूरत है, वो लास्ट टर्म हम फाइंड आउट करेंगे. ओके, अब वो लास्ट टर्म को कैसे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर
this denominator last term find out करने के बाद we'll try to reduce it to this standard form. Okay, let us see how. Now here last term का formula है coefficient of s अपॉन 2 द होल स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर s का कोएफिशिएंट क्या है? -4. तो इस फॉर्मूला में हम कोएफिशिएंट ऑफ s -4 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा -4 अपॉन 2 द होल स्क्वायर. दिस गिव्स अस -2 द होल स्क्वायर. माइनस का स्क्वायर प्लस है, 2 का स्क्वायर 4 है, तो द लास्ट टर्म हियर कम्स आउट टू बी 4. ओके, तो ये लास्ट टर्म फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पर हमें ये लास्ट टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. दैट इज द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू. सो दिस बिकम्स लाप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 2 एज इट इज अपॉन s स्क्वायर -4. तो हमने वैसा का वैसा लिखा. लास्ट टर्म हमें एडजस्ट करना है, तो ये लास्ट टर्म हमें मिला +4, तो वी राइट +4 हियर. अभी ये +4 को कॉम्पनसेट करने के लिए हमें -4 भी लिखना है. So this +13 we wrote here and -4. Okay. So now if you look at this three terms in the bracket, this becomes a perfect square. तो इसको हम लिख सकते हैं. Here we get Laplace inverse of s plus 2 upon. अभी ये perfect square है, यानी इसका first term जो है यहाँ पर s square है, तो first term होगा s. यहाँ लास्ट टर्म 4 है, तो इसका सेकेंड टर्म रहेगा 2. और जो साइन है इट विल बी द साइन ऑफ द मिडल टर्म. मिडल टर्म माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आएगा. तो वी गेट दिस इज s -2 द होल स्क्वायर प्लस 13 - 4 गिव्स अस +9. सो वी गेट s -2 द होल स्क्वायर +9. ओके, अगर इस डिनोमिनेटर को आप इस डिनोमिनेटर के साथ कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा बहुत s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में है. एक ही फर्क है कि s नहीं है, s के जगह पर s -2 है. ओके, सो ये थोड़ा बहुत इस स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर की तरह थोड़ा बहुत दिखने लगा है, नॉट देयर येट. ओके, सो इसको अगर इस डिनोमिनेटर की तरह दिखना है तो हमें s -2 के जगह पर s अगर हम रिप्लेस कर पाए तो देन इट विल बी इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म. ओके, यहाँ तक समझ में आया? हमने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर है क्वाड्रेटिक है, उसके रूट्स फाइंड आउट किए. रूट्स कॉम्प्लेक्स आए. कॉम्प्लेक्स रूट्स है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना है. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या करना है, एस स्क्वायर टर्म और एस टर्म को वैसा का वैसा रखना है और लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला. दैट इज लास्ट टर्म इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ s अपॉन 2 द होल स्क्वायर. ये यूज किया तो हमें लास्ट टर्म 4 आया, वो हमने यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हमें मिला s -2 द होल स्क्वायर +9. अब ये डिनोमिनेटर को अगर हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो उसके लिए s -2 के जगह पे s होना चाहिए. ओके, सो नाउ व्हाट वी वांट टू डू हियर इज वी वांट टू रिप्लेस s -2 बाय s. क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आंसर इज yes. There is a facility in Laplace inverse where you can replace s -2 by s via one property. Okay, let us see what that property is. So now this property says कि suppose आपके पास Laplace inverse है of some function phi जहाँ पे s minus a है और आपको इस s minus a के जगह पे s replace करना है. Okay, so you have a function phi where you have s minus a. You want to replace this s minus a by s. तो उसका प्रोसीजर क्या है, s minus a के जगह पे अगर आप s रिप्लेस करना चाहते हैं तो Laplace इनवर्स के बाहर you have to multiply by e raised to at. Okay, so this will be equal to e raised to at into Laplace inverse of phi of s. e raised to at अगर आपने बाहर मल्टीप्लाई किया तो Laplace इनवर्स के अंदर s minus a के जगह पे आप s रिप्लेस कर सकते हैं. ओके, सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन इनवर्स Laplace ट्रांसफॉर्म. ओके, तो इसका अभी हम ज्यादा ना इसमें डोंट गेट वरीड अबाउट द नेम्स एंड ऑल, जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसीजर. ओके, तो नाउ इसका एक और पैरेलल स्टेटमेंट है. सपोज हमारे पास Laplace इनवर्स ऑफ phi ऑफ s प्लस a है और हमें s प्लस a के जगह पे s को रिप्लेस करना है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये Laplace इनवर्स के बाहर क्या मल्टीप्लाई होगा,
s माइनस ए को जब s के साथ रिप्लेस करना था तो हमने s माइनस ए को s के साथ रिप्लेस किया तो बाहर e रेस टू at से मल्टीप्लाई किया, s माइनस ए को s से रिप्लेस किया तो e रेस टू at से रिप्लेस किया, करेक्ट। अगर s प्लस ए को s से रिप्लेस करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई आउटसाइड बाय e रेस टू माइनस at। वेरी गुड ऑल ऑफ यू ऑल, वेरी गुड। ओके, तो दिस इज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये हम यूज करेंगे। ओके, तो यहां पर हमें s माइनस टू के जगह पे s चाहिए तो यहां बाहर क्या मल्टीप्लाई होगा, e रेस टू, यहाँ s माइनस टू है तो e रेस टू प्लस टू टी, दैट इज e रेस टू टू टी से मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट। ओके, लेकिन ये जो s माइनस टू को हमें s से रिप्लेस करना है, ये पूरे लैप्लास इनवर्स के अंदर जो पूरा फंक्शन है पूरे में रिप्लेस करना है या सिर्फ डिनोमिनेटर में रिप्लेस करना है, क्या लगता है आपको? फुल फंक्शन लैप्लास इनवर्स के अंदर ये जो फुल फंक्शन है, वन मिनट माउस, हाँ, ये जो पूरे फंक्शन में s माइनस टू के जगह पे s रिप्लेस करना पड़ेगा या सिर्फ डिनोमिनेटर में रिप्लेस करना पड़ेगा? अगर ये हमें प्रॉपर्टी यूज करना है तो फुल फंक्शन, वेरी गुड। तो फुल फंक्शन मतलब यहाँ पर तो s माइनस टू है बट यहाँ पर s माइनस टू नहीं है, करेक्ट नो? तो हम लोग रिप्लेस क्या करेंगे, तो सबसे पहले s माइनस टू यहाँ पर हम लाते हैं और बाद में रिप्लेस करेंगे। ओके, तो दिस इज लैप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पर s है तो देखो हमने s माइनस टू लाया है बिकॉज वी वांट टू रिप्लेस s माइनस टू। ओके, तो कहीं पर भी हमें s नहीं दिखना है, s के साथ माइनस टू भी दिखना है, तो ये s माइनस टू ये हमने ला दिया, तो ये माइनस टू हमने एक्स्ट्रा लाया, इसको कॉम्पनसेट करने के लिए प्लस टू ऐड किया यहाँ पर और ये वाला प्लस टू यहाँ पर है अपॉन s माइनस टू द होल स्क्वायर प्लस 9। ओके, नाउ this s minus 2 and this s minus 2 we will replace by s, उसके लिए ये हमने बाहर मल्टीप्लाई किया e रेस टू टू टी इंटू लैप्लास इनवर्स ऑफ s माइनस टू के जगह पे s आ गया, यहाँ बचा प्लस 4 अपॉन s माइनस टू के जगह पे s आ गया तो ये s स्क्वायर हुआ प्लस 9। ओके, सो नाउ इफ वी सी वी गेट द स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर। ओके, इस तरह का डिनोमिनेटर मिल गया। तो जब भी हमें स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर रहता है तो प्रोसीजर क्या है, डिवाइड सेपरेटली, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, 3 स्टेप प्रोसीजर है। ओके, तो ये स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर मिल गया तो वी फॉलो द 3 स्टेप प्रोसीजर। तो पहले डिवाइड सेपरेटली, यहाँ पर हम डिवाइड सेपरेटली और लीनियरिटी प्रॉपर्टी साथ में यूज करते हैं बिकॉज वी नो हाउ टू यूज इट। ओके, सो ये e रेस टू टू टी इंटू लैप्लास इनवर्स ऑफ s स्क्वायर प्लस 9 प्लस ये 4 बाहर आएगा, 4 बाहर आएगा तो यहाँ पर 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 रहेगा। ओके, बट ये एस स्क्वायर प्लस 9 मतलब एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हमें 1 नहीं 3 चाहिए, तो वो हमने यहाँ पर साथ में एडजस्ट कर लिया है। आप इसको 2 स्टेप में भी कर सकते हैं। ओके, इसको आप 2 स्टेप में भी कर सकते हैं बट यहाँ पर हमने सेम स्टेप में कर लिया है। तो डिवाइड सेपरेट करते वक्त 4 बाहर आया तो प्लस 4 लैप्लास इनवर्स ऑफ यहाँ पर 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 आता है, बट अगर कांस्टेंट यहाँ 1 है तो वी वांट दिस कांस्टेंट टू बी a, अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना है। a कहाँ से मिलता है, दिस इज a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर में से हमें a मिलता है, तो दिस इज 3 स्क्वायर, यहाँ 3 चाहिए तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई किया और यहाँ डिवाइड किया। ओके, सो वी हैव एडजस्टेड दिस। So we have used, we have divided separately, we have used linearity property also और ये 3 को भी adjust कर लिया है so that we can use standard formula. Now we use the standard formula. This gives us e raised to 2t, Laplace inverse of s upon s square plus 9 is cos 3t plus 4 upon 3, Laplace inverse of 3 upon s square plus 9 is sin 3t. Okay, and this is the final answer. Have we understood this? ये समझ में आया मेथड? ओके, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
ओके, तो हम इसी तरह का एक टाइप का एक और प्रॉब्लम देखेंगे ताकि ये प्रोसीजर बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ जाए. ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ 2s plus 3 upon s square plus 2s plus 2. ओके, तो यहाँ पर लैप्लास इनवर्स है तो हम सबसे पहला डिनोमिनेटर को देखेंगे. डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है. ओके, इज द डिनोमिनेटर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म? नो. तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है. तो इस डिनोमिनेटर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे? सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को लेके हम इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर में. ओके, कैलकुलेटर में इक्वेशन मोड में रख के अगर हमने ये कोएफिशिएंट्स डाला तो इसका रूट्स आता है -1 प्लस आई -1 माइनस आई. यहाँ पर हमें सिर्फ नेचर ऑफ द रूट्स देखना है. ओके, सो वी सी दिस रूट्स आर कॉम्प्लेक्स. हेलो, yeah, am I audible clearly now? हेलो, सुनाई दे रहा है? ओके, हाँ, तो ये रूट्स हमने निकाले. तो ये रूट्स जो है कॉम्प्लेक्स रूट्स है. अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करेंगे. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मतलब ये वाला स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर हमें सिंप्लीफिकेशन के बाद मिलेगा. ओके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमें क्या करना है? इस डिनोमिनेटर को लेना है और एस स्क्वायर और एस वाला टर्म को वैसा का वैसा रख के लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है. लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एस अपॉन 2 द होल स्क्वायर. यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एस है 2, सब्स्टिट्यूट किया तो मिलता है 2 अपॉन 2 द होल स्क्वायर. दिस गिव्स अस 1 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1. अब ये लास्ट टर्म हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे. ओके, सो वी गेट Laplace inverse of this numerator as it is 2s plus 3 upon s square plus 2s plus 1. ओके, प्लस ये 2 वैसा का वैसा एंड ये +1 को कॉम्पनसेट करने के लिए -1 यहाँ पर. ओके, अब ये 3 टर्म्स जो है दे आर अ परफेक्ट स्क्वायर. So that is Laplace inverse of 2s plus 3. तो ये s square में से फर्स्ट टर्म मिलता है s, ये लास्ट का 1, दिस इज 1 स्क्वायर, तो इससे सेकेंड टर्म मिलता है 1 और बीच का साइन मिलता है फ्रॉम द साइन ऑफ द मिडल टर्म. s वाले टर्म का जो साइन है वो इसका साइन रहेगा. सो दिस गिव्स अस s plus 1 the whole square. प्लस 2 माइनस 1 गिव्स अस प्लस 1. ओके, अब इस डिनोमिनेटर को देखेंगे तो दिस विल बी ऑलमोस्ट, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक दिस स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर. एक ही फर्क है, s प्लस 1 है. हमें ये s प्लस 1 नहीं चाहिए, s प्लस 1 के जगह पे हमें s चाहिए. ओके, तो उसके लिए ये शिफ्टिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे. तो s प्लस 1 के जगह पे अगर हमें s रिप्लेस करना है तो ये हमें सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं फुल फंक्शन में रिप्लेस करना है. ओके, तो उसके लिए ये न्यूमरेटर में यहाँ पर सिर्फ s दिखाई दे रहा है, s प्लस 1 दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें यहाँ पर s प्लस 1 लाना होगा. ये s क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाइड है, सी वी विल एडजस्ट इट इन दिस वे. दिस विल बी Laplace इनवर्स ऑफ 2 ब्रैकेट ओपन s प्लस 1 चाहिए हमें, तो s प्लस 1 इस +1 को कॉम्पनसेट करने के लिए -1 इधर ब्रैकेट के अंदर ही. ओके, बिकॉज दिस एंटायर थिंग इज नाउ मल्टीप्लाइड विथ 2. सो ये s प्लस 1 हमने ला दिया, +3 एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर में s प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 1. ओके, अब हमें रिप्लेसमेंट किस चीज का करना है? s प्लस 1. ओके, जहां जहां s प्लस 1 है वहां पर s प्लस 1 के जगह पर हम रिप्लेस करेंगे s. तो ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे. s प्लस a के जगह पे जब हम s रिप्लेस करते हैं, बाहर मल्टीप्लाई करना है e रेज टू माइनस at से, तो s प्लस 1 के जगह पे जब हम s रिप्लेस करेंगे तो बाहर मल्टीप्लाई करेंगे e रेज टू माइनस 1t, दैट इज e रेज टू माइनस t इंटू Laplace इनवर्स ऑफ, देखो ये 2 वैसा का वैसा, ये s प्लस 1 के जगह पे s रिप्लेस किया है, ये -1 वैसा का वैसा +3 एज इट इज अपॉन s प्लस 1 के जगह पे s रिप्लेस किया, सो वी गेट s स्क्वायर प्लस 1. ओके, सो अब ये न्यूमरेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे
This gives us e raised to minus t into Laplace inverse of 2s minus 2 plus 3 upon s square plus 1. So this gives us e raised to minus t into Laplace inverse of 2s minus 2 plus 3 is plus 1. Okay, so we get 2s plus 1 upon s square plus 1. तो ये न्यूमरेटर का ब्रैकेट भी सिंप्लीफाई हो गया. Now the denominator is the standard denominator. जब standard denominator रहता है तो divide separately, linearity property, standard formula. Okay, तो यहाँ पर divide separately and linearity property हम एक ही step में करेंगे. तो we get this is e raised to minus t. This 2 will come out. So we get 2 into Laplace inverse of s upon s square plus 1 plus 1 upon s square plus 1. Now this 1 is a constant. तो ये constant जो है, ये जो constant है, ये इसको a square consider करके ये constant a होना चाहिए. मतलब यहाँ पर जो है इसका root यहाँ होना चाहिए. तो ये 1 है, इसका रूट 1 है, तो दिस इज परफेक्ट, नथिंग टू बी एडजस्टेड. ओके, अब हमने सेपरेट डिवीजन, लीनियरिटी प्रॉपर्टी दोनों एक ही स्टेप में यूज कर दिया है. नेक्स्ट वी यूज स्टैंडर्ड फॉर्मूला. ओके, सो लेट अस सी व्हाट द स्टैंडर्ड फॉर्मूला वुड बी. दिस इज e raised to minus t here as it is, 2 as it is. Laplace inverse of s upon s square plus 1 is cos t plus Laplace inverse of 1 upon s square plus 1 is sin t, and this becomes our final answer. Okay, so have we understood this procedure very well? दो स्ट्रैटेजी और एक प्रॉपर्टी यूज किया है हमने, नया जो है वो. ओके, ग्रेट. ओके, now we move on to the next problem. Okay, नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें फाइंड आउट करना है Laplace इनवर्स ऑफ 3s plus 7 अपॉन s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 3. ओके, Laplace इनवर्स है तो हम पहले डिनोमिनेटर को देखेंगे. ये जो डिनोमिनेटर है स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर नहीं है. ओके, तो हमें इसको स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर में लाना है. लेट अस सी हाउ. ये जो डिनोमिनेटर है ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं. इसको कैलकुलेटर में इक्वेशन मोड में इसके कोएफिशिएंट्स अगर हमने सब्स्टिट्यूट किए तो इसके रूट्स हमें 3 और -1 मिलता है. यहाँ पर क्या डिफरेंस है, द रूट्स आर रियल. ओके, सो वी गॉट रियल रूट्स. कॉम्प्लेक्स रूट्स था तो हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज किया. रियल रूट्स है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करेंगे. ओके, फर्क समझा. जब क्वाड्रेटिक है इधर द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, डिनोमिनेटर जब क्वाड्रेटिक है तो उसके रूट्स या तो कॉम्प्लेक्स होंगे या तो रियल होंगे. अगर कॉम्प्लेक्स है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड अगर रियल रूट्स है तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. ओके, अब ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या है, लेट अस सी. इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये रियल रूट्स को यूज करके ये डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे. ओके, इसको एज फैक्टर्स लिखेंगे. फैक्टर्स कैसे लिखते हैं, इसको फैक्टर्स लिखने के बाद यहाँ पर हमारा जो स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर है ना वो इस तरह का होगा. लेट अस सी हाउ. तो फैक्टर्स कैसे लिखते हैं, अगर हमारा रूट्स है a और b. ओके, तो फैक्टर्स क्या होगा, अगर एक रूट a है तो उसका फैक्टर आएगा s माइनस a. इट विल बी s माइनस वॉट एवर रूट वी हैव हियर. दूसरा अगर b है तो उसके करस्पॉन्डिंग फैक्टर आएगा s माइनस b. अगर यहाँ पर c होता तो और एक फैक्टर आता s माइनस c. ओके, तो आपको जो भी रूट मिलता है उसका करस्पॉन्डिंग फैक्टर आएगा s माइनस दैट पर्टिकुलर रूट. तो यहाँ पर 3 है तो इसके करस्पॉन्डिंग फैक्टर आएगा s माइनस 3. यहाँ पर -1 है तो इसका करस्पॉन्डिंग फैक्टर आएगा s माइनस -1. ओके, सो हमारे फैक्टर्स क्या है डिनोमिनेटर के, 3 के करस्पॉन्डिंग s माइनस 3, -1 के करस्पॉन्डिंग s माइनस -1, s माइनस -1 इज s प्लस 1. ओके, तो हमने ये फैक्टराइज कर दिया. सो वी गेट Laplace इनवर्स ऑफ 3s plus 7 अपॉन s माइनस 3 इंटू s प्लस 1. ओके, अब अगर आपने ये डिनोमिनेटर को देखा
तो ये s minus 3 it is standard in denominator in this form. s plus 1 ये भी standard denominator है in this form. बट प्रॉब्लम है ये दो स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाइड है, हमें ये दोनों एक ही डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, हमें ये दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर में चाहिए. Whenever we want to separate the factors in the denominator, we have to use partial fraction. Okay, so here let us use partial fraction. पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने से पहले हमेशा एक बात हमें चेक करना है कि डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर हैज टू बी स्ट्रिक्टली लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर का डिग्री है 1, यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ s जो है 1 है. डिनोमिनेटर का डिग्री जो है वो 2 है. इसको अगर हम ओपन करेंगे ये मिलेगा हाईएस्ट पावर ऑफ s इज 2. तो न्यूमरेटर का डिग्री 1, डिनोमिनेटर का डिग्री 2, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज स्ट्रिक्टली लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. मतलब यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं. ओके, अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री अगर सेम हो तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं कर सकते. अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ा है तो भी यूज नहीं कर सकते. ओके, हियर इट इज स्मॉलर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिग्री ऑफ denominator, so we can use partial fraction. Now let us see what is this method of partial fraction. By partial fraction, this 3s plus 7 upon s minus 3 into s plus 1 will be equal to some constant a upon this first factor s minus 3 plus b upon s plus 1. Okay, so this tells us how the factors in the denominator can be separated. ये लीनियर फैक्टर है, इसके लिए इसके न्यूमरेटर जो है ये कांस्टेंट आएंगे. ओके, अब हमें ये a और b क्या है ये फाइंड आउट करना है. वंस वी फाइंड आउट दिस a एंड b देन वी आर डन. ओके, अब ये a और b फाइंड आउट करने का प्रोसीजर देखो. सबसे पहले a फाइंड आउट करने का मेथड देखते हैं. a इक्वल टू, ओके, इसका एक्सप्रेशन ये है. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी गेट दिस एक्सप्रेशन. ये जो a है ये किसका न्यूमरेटर है? s माइनस 3 का न्यूमरेटर है. ओके, a इज द न्यूमरेटर ऑफ s माइनस 3. ओके, इस पॉइंट को नोट किया. नाउ वी कम टू द लेफ्ट. लेफ्ट में ये जो s माइनस 3 है जो a का डिनोमिनेटर है उसको हम डिलीट करेंगे, उसको निकाल दो यहाँ से. जो बचता है वो लिखो. तो क्या बचा यहाँ पर? 3s प्लस 7 अपॉन s प्लस 1. ओके, क्या किया हमने? a जो है s माइनस 3 का न्यूमरेटर है, वी आर ट्राइंग टू फाइंड a. तो a s माइनस 3 का न्यूमरेटर है. वी कम टू द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में उस s माइनस 3 को हमने डिलीट किया, जो बचा है वो हमने यहाँ लिख दिया. ओके, अब ये लाइन का मतलब है इवैल्यूएट दिस या फिर इन दिस एक्सप्रेशन पुट. ओके, व्हाट डू वी हैव टू पुट? अब ये देखो, ये जो है s माइनस 3, यहाँ पर अगर s माइनस 3 है तो इन दिस यू पुट s इक्वल टू 3. ओके, अगर s माइनस 3 है तो यू पुट s इक्वल टू प्लस 3. यहाँ पर माइनस 3 है तो यहाँ पर प्लस 3 डालना है. ओके, ये प्रोसीजर याद रखना. तो यहाँ पर हमने s इक्वल टू 3 डाला, मतलब वी गेट 3 इंटू 3 प्लस 7 अपॉन 3 प्लस 1. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 3 प्लस 3 इज 9, 9 प्लस 7 इज 16 अपॉन 4, 16 बाई 4 इज 4. तो ये a का वैल्यू हमें मिल गया 4. ये पार्शियल फ्रैक्शन का स्टेप्स है, स्ट्रेटेजीज है. ये देखो समझ में आया है क्या? इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो. ओके, यही स्ट्रेटेजी एक और बार हम यूज करेंगे b फाइंड आउट करने के लिए. ओके, लेट अस अगेन डू दिस नाउ. ये जो b है, b फाइंड आउट करना है. b किसका न्यूमरेटर है? s प्लस 1 का न्यूमरेटर है. ओके, चलो ये नोट डाउन कर लिया. अब हम लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे. लेफ्ट हैंड साइड में s प्लस 1 को डिलीट करेंगे, जो बचता है वो लिखेंगे. क्या बचता है? 3s plus 7 upon s minus 3. Okay, in this we will put, what will we put? क्या डिलीट किया था हमने? s plus 1 को डिलीट किया था, तो यहाँ पर s इक्वल टू माइनस 1 डालना है. ओके, ये s प्लस 1 को डिलीट किया था तो s इक्वल टू माइनस 1 को डालना है. तो ये जो है ये एक्सप्रेशन हमें लेफ्ट हैंड साइड से मिलता है.
यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है इसमें डिनोमिनेटर, जो रेलेवेंट डिनोमिनेटर है उसको डिलीट करना है, और जो आपने डिलीट किया उसमें से आपको पता चलता है कि s आपको क्या सब्सटीट्यूट करना है. ओके, तो लेट अस सब्सटीट्यूट s इक्वल टू -1 हियर. तो वी गेट 3 into -1 plus 7 upon -1 minus 3. This gives us -3 plus 7. -3 plus 7 is 4 upon -1 minus 3 is -4. 4 upon -4 is -1. ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से a और b फाइंड आउट कर लिया. यहां तक समझ में आया? ओके, ग्रेट. ओके, तो अब तक हमने क्या किया, ये लैप्लास इनवर्स का डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया था. इसको पार्शियल फ्रैक्शन में दिस वी हैड रिटन इट एज a अपॉन s माइनस 3 प्लस b अपॉन s प्लस 1, करेक्ट. 3s प्लस 7 अपॉन s माइनस 3 इंटू s प्लस 1 को पार्शियल फ्रैक्शन में a अपॉन s माइनस 3 प्लस b अपॉन s प्लस 1 लिखा था. And then we had used that strategy and we found out a as 4 and b as -1. ये किया था हमने पिछले स्लाइड में. अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, a के जगह पे 4 और b के जगह पे -1 सब्सटीट्यूट करना है. तो वी गेट लैप्लास इनवर्स ऑफ 4 अपॉन s माइनस 3 प्लस b इज -1 अपॉन s प्लस 1. ओके, ये हमने सब्सटीट्यूट किया. अब हमें स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर मिल गया है. स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर मिलता है तो क्या करना है, डिवाइड सेपरेटली, लीनियरिटी प्रॉपर्टी एंड स्टैंडर्ड फॉर्मूला. यहाँ पर कोई डिवाइड सेपरेटली तो नहीं है, बट विल यूज लीनियरिटी प्रॉपर्टी. यहाँ लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये 4 बाहर आ जाएगा, तो हमें मिलता है 4 इंटू लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 3. ये -1 बाहर आ जाएगा, सो वी गेट माइनस लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 1. Now we put our standard formulas. Okay, so this will be 4 into Laplace inverse of 1 upon s minus 3 is e raised to 3t minus Laplace inverse of 1 upon s plus 1 is e raised to minus t. Okay, so we use the standard formulas and that is the final answer. यहाँ तक समझ में आया? ओके, पिछले टाइप में और ये टाइप में, मतलब आज हमने जो फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम किया था जहां कॉम्प्लेक्स रूट्स था, उसमें और इसमें फर्क समझ में आया? दोनों में कुछ कंफ्यूजन है? समझ में आया ना? ओके, अब ओके ओके अब इस टाइप का एक और प्रॉब्लम करते हैं ताकि ये वाला जो टाइप है ये हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाए. ओके, अमन, नो इज फॉर समझ में आया वाला क्वेश्चन के लिए या कंफ्यूजन है वाला क्वेश्चन के लिए? नो डाउट. ओके डियर, चलो. So now we find out Laplace inverse of 4s plus 12 upon s square plus 8s plus 12. Okay, लैप्लास इनवर्स देखते ही ध्यान कहाँ जाएगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर में. ओके, ये डिनोमिनेटर हमारा स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर के साथ मैच होता है नहीं. ओके, तो हमें इसको स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर बनाना है. लेट अस सी हाउ. ये क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर है, तो क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर है तो हम इसका रूट्स फाइंड आउट करते हैं यूजिंग आवर कैलकुलेटर. तो इसको अगर आपने कैलकुलेटर में फीड किया तो इसका रूट्स हमें मिलता है -2 एंड -6. ये कौन से रूट्स है? रियल रूट्स. रियल रूट्स है तो हमारा मेथड होगा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड और हमें ये वाला स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर मिलेगा. ओके, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के लिए हम फैक्टराइज करेंगे. तो यहाँ पर देखो फर्स्ट रूट है -2, तो इसका फर्स्ट फैक्टर मिलेगा s माइनस दिस -2, तो दैट विल बी s प्लस 2. दैट विल बी द फर्स्ट फैक्टर. दूसरा फैक्टर डिनोमिनेटर का क्या होगा, यहाँ -6 है तो दूसरा फैक्टर है s माइनस दिस रूट, दैट इज s माइनस -6, so that will give us s plus 6. So we get here Laplace inverse of 4s plus 12 upon s plus 2 into s plus 6.
तो ये वाला जो फैक्टर है ये एज ए डिनोमिनेटर इज वेरी गुड, स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर है. दिस डिनोमिनेटर इज ऑल्सो वेरी गुड, स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर है. बट प्रॉब्लम है हमें ये दोनों एक साथ नहीं चाहिए, एक ही डिनोमिनेटर में ये दोनों नहीं चाहिए. तो इन दोनों को हमें सेपरेट करना है. टू सेपरेट दैट वी यूज पार्शियल फ्रैक्शन. So by partial fraction first checking is न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से छोटा है. यस यहाँ पर छोटा है. न्यूमरेटर का डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है. ओके, सो देन बाय पार्शियल फ्रैक्शन 4s plus 12 upon s plus 2 into s plus 6 will be equal to a upon s plus 2 plus b upon s plus 6. So a upon this first factor plus b upon the second factor. अब हमें ये a और ये b फाइंड आउट करना है. a कैसे फाइंड आउट करेंगे? a इज द न्यूमरेटर ऑफ s प्लस 2. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, s प्लस 2 को डिलीट करेंगे, जो बचा है वो लिखेंगे और उसमें s इक्वल टू -2 डालेंगे. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग a? हम लेफ्ट हैंड साइड में आए, s प्लस 2 को डिलीट किया क्योंकि a इज द न्यूमरेटर ऑफ s प्लस 2. तो s प्लस 2 को लेफ्ट हैंड साइड से डिलीट किया तो 4s प्लस 12 अपॉन s प्लस 6 बचा. और इसमें क्या डालना है? s प्लस 2 को डिलीट किया था तो s इक्वल टू -2 डालना है. ओके, तो लेट अस सब्स्टिट्यूट. वी गेट 4 into -2 plus 12 upon -2 plus 6. This is -8 plus 12, that is 4 upon -2 plus 6 is 4. तो 4 upon 4 ये हमें 1 मिलता है. ओके, तो a का वैल्यू मिल गया 1. इसी तरह से अभिनव, वेरी गुड, क्या फास्ट है, वेरी गुड वेरी गुड. मतलब आपको बहुत अच्छे से ये मेथड समझ में आ गया है. ओके, नेक्स्ट a का वैल्यू 1 मिला. चलो हमारा a का वैल्यू अभिनव के a के वैल्यू के साथ मैच होता है. b का वैल्यू भी चेक करते हैं. ओके, तो b किसका न्यूमरेटर है? s प्लस 6 का. तो b फाइंड आउट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, s प्लस 6 को डिलीट करेंगे, क्या बचा? 4s प्लस 12 अपॉन s प्लस 2. और इसमें क्या पुट करेंगे? s प्लस 6 को डिलीट किया तो s इक्वल टू -6 पुट किया. चलो s इक्वल टू -6 पुट करते हैं तो 4 into -6 plus 12 upon -6 plus 2 we got. Okay, this is -24 plus 12, so that is -12 upon -4, 3. Excellent, Abhinav and Shweta, very good. So we have got the perfect answer. Okay, तो a और b मिल गया. अब इसको इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं. तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट देखो क्या किया है. ये जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को रूट्स फाइंड आउट करके फैक्टराइज किया था, फिर इसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन लिखा था, तो ये वाला पार्शियल फ्रैक्शन था, और हमने ये फॉर्मूला यूज करके a और b a फाइंड आउट किया था. a 1 था, b 3 था. ये हमने किया था पिछले स्लाइड में. ओके, अब इसमें हम a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 3 सब्सटीट्यूट करेंगे. So we get Laplace inverse of 1 upon s plus 2 plus 3 upon s plus 6. अब ये डिनोमिनेटर स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर है, ये भी स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर है. ओके, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर मतलब क्या करना है? डिवाइड सेपरेटली, लीनियरिटी प्रॉपर्टी एंड स्टैंडर्ड फॉर्मूला. डिवाइड सेपरेटली तो यहाँ पर कुछ जरूरत नहीं है, तो वी यूज लीनियरिटी प्रॉपर्टी फर्स्ट. तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी में वी गेट Laplace इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 2 प्लस ये 3 कांस्टेंट बाहर आ गया इंटू Laplace इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 6. इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे. सो Laplace इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 2 इज e रेज टू -2t प्लस 3 इंटू Laplace इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 6 इज e रेज टू -6t. और ये हमारा फाइनल आंसर है. क्लियर एवरीवन? अच्छे से समझ में आया? ओके, ग्रेट. ओके, तो जब भी हमारा डिनोमिनेटर s स्क्वायर रहेगा तो ये दोनों में से एक मेथड आपको यूज करना है, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज कॉम्प्लेक्स रूट्स और रियल रूट्स. ओके, तो s स्क्वायर अगर डिनोमिनेटर है, s स्क्वायर के बाद चाहे जो भी हो, तो क्या करना है वो हमने ये 4 प्रॉब्लम्स में देख लिया है. ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी जस्ट वन मोर प्रॉब्लम फॉर टुडे. ओके,
यहाँ पर अभी हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में रिड्यूस वाला पार्ट देख लिया था, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला वाला भी देख लिया था। ये एक इसका एक प्रॉब्लम देख लेते हैं s रेज टू सम पावर का। ओके, तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है लप्लास इनवर्स ऑफ 1 माइनस रूट एस अपॉन एस स्क्वेयर द होल स्क्वेयर। ओके, ऑल राइट, लप्लास इनवर्स है तो पहले हमें डिनोमिनेटर को देखना है, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है जब तक ये स्क्वायर को हम ओपन नहीं करेंगे डिनोमिनेटर हमें क्लियरली दिखेगा नहीं। तो फर्स्ट वी ओपन द स्क्वायर। ओके, मतलब न्यूमरेटर का भी स्क्वायर करना है, डिनोमिनेटर का भी हमें स्क्वायर करना है। न्यूमरेटर का स्क्वायर होगा a माइनस बी द होल स्क्वायर। a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अभी भी हम a माइनस बी द होल स्क्वायर को शॉर्टकट मेथड से करते हैं, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। सी जब पावर रहता है तो ऐसे ब्रैकेट ओपन नहीं होता है, you have to use the formula. Okay, so a minus b the whole square is a square, that is 1 ka square is 1 minus 2ab, so minus 2 into 1 into root s, so that gives us minus 2 root s plus b square, that is root s का square है s. Okay, upon s square का square होगा s raised to 4. तो ये हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया. ओके, नाउ वी लुक एट द डिनोमिनेटर. Denominator is s raised to 4. Is it standard denominator? Yes, s raised to n के फॉर्म में है. स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर है तो डिवाइड सेपरेटली, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला. तो सबसे पहले डिवाइड सेपरेटली करते हैं. ओके, ये 3 स्टेप प्रोसीजर है अपना. तो सबसे पहले डिवाइड सेपरेटली करते हैं. सो दिस विल बी लप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s रेज टू 4 माइनस 2 इंटू, ये रूट एस को मैंने s रेज टू हाफ लिखा है. ओके, रूट एस कैन बी रिटन एज s रेज टू हाफ अपॉन s रेज टू 4 प्लस s अपॉन s रेज टू 4. ओके, अब इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, उसको पहले कर लेते हैं. लप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s रेज टू 4 रिमेन्स एज इट इज माइनस 2 s raised to half upon s raised to 4 will be 1 upon s raised to 4 minus half. Okay, and 4 minus half is 7 by 2. So we get 1 upon s raised to 7 by 2 plus यहाँ पर एक s cancel हो जाएगा, so we get 1 upon s cube. Okay, so ये divide separately हो गया. अब हम यहाँ पर linearity property यूज करेंगे. तो we get Laplace inverse of 1 upon s raised to 4 minus 2 Laplace inverse of 1 upon s raised to 7 by 2 plus Laplace inverse of 1 upon s cube. Okay, तो ये linearity property भी हो गया. अब standard formula यूज करना है. स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर यूज करना है तो यहाँ देखो s raised to 4 है, तो न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना है? तो किसी को याद है? 3 फैक्टोरियल नहीं चाहिए, क्या चाहिए? अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्मूला s रेज टू 4 है तो 3 फैक्टोरियल तो सिंप्लीफाई करने के बाद आता है. ओरिजिनल फॉर्मूला में गैमा ऑफ 4, करेक्ट. डायरेक्ट मत जंप करना, हाँ, अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप जाना, एक हर एक स्टेप का मार्क्स होता है. तो s रेज टू 4 है तो यहाँ पर गैमा ऑफ 4 चाहिए, तो वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय गैमा ऑफ 4. So we get 1 by 4 Laplace inverse of gamma of 4 upon s raised to 4. यहाँ पर s raised to 7 by 2 है. yes yes correct, all of you आपका आंसर्स करेक्ट है. s raised to 7 by 2 है तो यहाँ पर न्यूमरेटर में चाहिए gamma of 7 by 2. तो ये मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किया gamma of 7 by 2. So we get minus 2 upon gamma of 7 by 2 into Laplace inverse of gamma of 7 by 2 upon s raised to 7 by 2 प्लस यहाँ पर लप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस क्यूब है तो न्यूमरेटर में चाहिए गैमा ऑफ 3, तो गैमा ऑफ 3 न्यूमरेटर में और यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी लिख दिया. ओके, धीरज हैज गॉन टू द नेक्स्ट स्टेप, करेक्ट. तो ये हमने ये जो कांस्टेंट न्यूमरेटर में चाहिए इसको एडजस्ट कर लिया. अब हम ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी द फर्स्ट वन. लप्लास इनवर्स ऑफ गैमा ऑफ 4 अपॉन एस रेज टू 4 क्या आएगा? टी क्यूब. धीरज हैज ऑलरेडी गिवन द आंसर, तो ये आएगा टी क्यूब. इससे एक पावर कम मिलता है, करेक्ट. सो 1 अपॉन गैमा ऑफ 4 एज इट इज, इसका फॉर्मूला है टी क्यूब. यहाँ पर s रेज टू 7 by 2 है तो 7 by 2 से एक कम क्या है? 5 by 2.
तो यहाँ पर आएगा 2 अपॉन गैमा ऑफ 7/2 एज इट इज, और इस लप्लास इनवर्स ऑफ गैमा ऑफ 7/2 अपॉन s रेज टू 7/2 है t रेज टू 5/2, प्लस नेक्स्ट यहाँ पर 1 अपॉन गैमा ऑफ 3 है, दिस विल रिमेन एज इट इज, लप्लास इनवर्स ऑफ गैमा ऑफ 3 अपॉन s क्यूब है, तो यहाँ पर t स्क्वायर आएगा, सो वी गेट 1 अपॉन गैमा ऑफ 3 इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो ये लप्लास इनवर्स के स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो डाल दिए, अब क्या बचा, सिर्फ ये गैमा इवेलुएट करना है, हमें गैमा वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना है। ओके, अभी गैमा ऑफ 4, ये 4 यानी डिनोमिनेटर 1 वाला है, तो गैमा ऑफ 4 है तो उसका वैल्यू है 3 फैक्टोरियल, करेक्ट, तो ये दिस विल बिकम 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू टी क्यूब। ये जो गैमा वैल्यू है ये डिनोमिनेटर 2 वाला है, तो इसका प्रोसीजर हमने देखा था कैसे सिंप्लीफाई करना है, राइट, कैसे सिंप्लीफाई करना है, दिस इज 2 एज इट इज, ये गैमा ऑफ 7/2 है, तो 7 से छोटा नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है, 5/2, धीरज देयर इज नथिंग लाइक 5/2 फैक्टोरियल, हाँ 5/2 फैक्टोरियल नहीं होता है, ये रिकर्सिव फॉर्मूला होता है। ओके, तो ये 7/2 में 7 का नेक्स्ट छोटा ऑड नंबर है 5, तो 5/2, 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर, छोटा ऑड नंबर है 3/2, 3 के बाद नेक्स्ट छोटा ऑड नंबर है 1/2, जैसे 1 पहुंचा वी स्टॉप एंड वी मल्टीप्लाई दैट बाय रूट पाई, ये प्रोसीजर हमने देखा था, करेक्ट, ये अभिनव। ओके, इंटू टी रेज टू 5/2 एज इट इज, प्लस 1 अपॉन गैमा ऑफ 3, अगर गैमा ऑफ 3 है तो वो है 2 फैक्टोरियल, इससे एक कम, सी गैमा ऑफ 4 3 फैक्टोरियल, गैमा ऑफ 3 2 फैक्टोरियल, और गैमा ऑफ 7/2, तो उसको ये प्रोसीजर यूज करना होगा। ओके, तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू टी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 फैक्टोरियल इज 6, सो वी गेट टी क्यूब अपॉन 6, प्लस यहाँ पर अभिनव ने ऑलरेडी आंसर फाइंड आउट कर लिया है, बट अपॉन 8 आएगा अभिनव, है ना, 15 रूट पाई अपॉन 8 आएगा। ओके, तो ये होगा 5 3 जा 15 इंटू 1 इज 15 अपॉन 2 2 जा 4 4 2 जा 8, और ये 8 ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा। ओके, तो 8 2 जा 16, तो वी गेट माइनस 16 अपॉन 15 रूट पाई इंटू दिस टी रेज टू 5/2। ओके, प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज 2, तो ये मिलता है टी स्क्वायर अपॉन 2, इसमें और कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, सो दैट इज द फाइनल आंसर। अंडरस्टूड दिस? सबको ये वाला प्रॉब्लम समझ में आया? ओके, तो आज हमने एस स्क्वायर डिनोमिनेटर है और कॉम्प्लेक्स रूट्स है तो कैसे सॉल्व करना है वो देखा है, एस स्क्वायर डिनोमिनेटर है, रियल रूट्स है तो कैसे सॉल्व करना है वो देखा है, और अगर s रेज टू n के फॉर्म में डिनोमिनेटर है तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो देखा है। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, सॉल्व करना, इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो पूछना। ओके, एंड देन ऑफ कोर्स नेक्स्ट लेक्चर में we will see the next type. I will tell you what type we are going to see. आज s square देखा हमने, डिनोमिनेटर में s square है तो कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अगर s क्यूब है डिनोमिनेटर में और s रेज टू 4। ओके, ये दो टाइप ऑफ डिनोमिनेटर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एंड टुडे I will remember to put quiz 16